Now to the second Jeep in the market, which is the Meridian. Technically, the first and second Jeep in our Indian market was Wrangler and Grand Cherokee, which was launched in the year 2016. Jeep, which entered the Indian market in the year 2016, starting with the release of the Wrangler and Grand Cherokee in the country, makes them the very first two SUVs by Jeep. But if we go segment and cost wise, now the first Jeep is Compass, the second is the Meridian, third is the Wrangler, and fourth is the Grand Cherokee. And in between 2016 till date, the Grand Cherokee SRT was launched, the Made in India Wrangler was launched, and facelifts and whatnot. So now to the second Jeep, according to the segment, which is the Jeep Meridian. So first of all, why is it named Meridian? इसे Meridian ये नाम कैसे मिला? Jeep Meridian लॉन्च हुई थी 19 मई 2022 में. But before launch, Jeep Meridian was undergoing extensive tests for suitability on our Indian roads and the weather condition we face here. The SUV was tested on every kind of terrain India has to offer और इसीलिए इसे चलाया गया था कश्मीर से कन्याकुमारी तक, drawing and connecting the straight line the two ends of our Indian map. So the line drawn on our Indian map is called the Meridian, which by the way they did while testing this SUV और इस तरह इसे Meridian ये नाम मिला. By the way US में और कोलंबिया में और भी कंट्रीज में ये कमांडर के नाम से जानी जाती है, सिर्फ इंडिया में इसका नाम Meridian है. So it's not just a Jeep, it's the original since 1941, which says go anywhere, do anything. So hello everyone and welcome to AVG Automotive and welcome to the Jeep saga, where I'm going to cover and review all the 4 Jeep SUVs in the market, beginning with the entry level Compass, then the Meridian, which is just a long version of the Compass, then the latest 2024 iconic Wrangler, a direct descendant from the original, from where it all started, to the flagship and luxurious, the Grand Cherokee. But hold on. Before starting the review, let me thank to the Landmark Jeep from Andheri for letting us shoot in their dealership premises, and a very special thanks to Mr. Abhishek Pawar, the senior sales consultant from Landmark Jeep Andheri, who allowed us and granted us the permission to shoot, and not only that, but also taking out the time for playing the part in our Jeep review videos. So let me introduce you to Mr. Abhishek Pawar to speak about himself. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक पवार. आज मैं लैंडमार्क शोरूम अंधेरी पे खड़ा हूँ और मेरा यहाँ पे डेजिग्नेशन है असिस्टेंट सेल्स मैनेजर और पिछले 8 साल से मैं यहाँ पे हूँ. 2017 से मैं यहाँ पे हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जीप के बारे में. और आज मैं डिटेल वीडियो आपको देने वाला हूँ सारे वेरिएंट्स के. जैसा हमारे सामने ग्रैंड चेरोकी है, सामने कंपस है, उसके बाजू में मेरिडियन है और रैंगलर है. तो सारी गाड़ियों के बारे में डिटेल वीडियो रिव्यू होगा आज और प्रॉपर रोड साइड वीडियो भी होगा, शोरूम का भी वीडियो होगा. तो गाइज़ वीडियो को देखते रहो, मज़े लेते रहो. और दूसरा चीज़ जीप के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा. जीप एक ऐसा प्रोडक्ट है कि 1941 से जीप पूरे वर्ल्ड वाइड में चल रही है. दूसरी चीज़ मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा. ये सेम प्रोडक्ट हम लोग 43 राइट हैंड ड्राइव कंट्रीज़ में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं. और सबसे बेस्ट ये गाड़ी की खासियत अगर मैं बोलूँ तो बिल्ड क्वालिटी इतनी सुपर्ब है कि 63% ट्रिप स्टील, 83% इसमें गैनोलाइज स्टील हमने यूज़ किया हुआ है. जो आज छोटी छोटी चीज़ों का अगर पैनल खोल के भी देखेंगे आप तो आपको एक्चुअल मालूम पड़ेगा कि इसका कोई भी जगह पे स्पॉट वेल्डिंग नहीं है. जहाँ पे हर एक ब्रांड्स में अगर आप देखोगे तो जो स्पॉट वेल्डिंग की वजह से 1-2-3 साल में रस्टिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल रस्टिंग नहीं आएगी, जिसकी वजह से आप लॉन्गर टाइम तक ये प्रोडक्ट रख सकते हैं. मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे एक वीडियो है, तो वो वीडियो भी आपको डिटेल वीडियो भी आपको दिखाएंगे. 1941 से सबसे पहले जीप विलीज लॉन्च हुई थी. उसके बाद वेरिएंट अलग अलग वेरिएंट्स लॉन्च किए थे. तो सबसे पहले 1941 की जो विलीज थी वो वर्ल्ड वॉर जीप जो अमेरिका का जो वर्ल्ड वॉर हुआ था
तो वहाँ पे वो यूज़ हुआ था। तो आप सोचिए वो कंपनी की प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि जीप एक नॉर्मल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीप एक ऑफ रोडर है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जीप एक ऐसी प्रोडक्ट है कि ये खुद हम रास्ते बनाते हैं। आपको 4x4 लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सुपीरियर प्रोडक्ट है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं ग्रैंड चेरोकी के सामने खड़ा हूँ। जीप, कंपास हो गया, मेरिडियन हो गया और रैंगलर हो गया, सारी गाड़ियाँ अपने हिसाब से अपने अपने लेवल पे है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मेरे साथ में और एक जो मेरे फ्रेंड है वो आए हुए हैं, जो आपको डिटेल वीडियो बनाएंगे और ओजी जीप के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो उनका यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल का नाम मैं बोलूँगा AVG। आप सर्च करेंगे AVG तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल जीप के बारे में डिटेल वीडियो वहाँ पे आपको दिखेंगे। और आप ज़रूर आपने देखे भी होंगे काफ़ी उनके वीडियोस, तो बहुत ज़बरदस्त रिव्यू करते हैं। और उनका पूरा नाम है अमय विजय गावड़े। तो उनका चैनल का नाम फिर से बोलूँगा AVG, जो उनका शॉर्ट फॉर्म नाम उन्होंने रखा हुआ है। तो AVG उनका यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है। तो गाइज़ मैं आप सबको बोलूँगा, मैं भी उनका साथ दे रहा था ये वीडियो में, आप सब ने तो मुझे देखा ही है। मैं यहाँ पे बहुत सारा उन्होंने भी मेरे को हेल्प किया, मैंने भी उनको काफ़ी हेल्प किया वो वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जल्द से जल्द अगर जिसको भी जीप की टेस्ट ड्राइव लेनी है तो मुझे आपके घर पे बुलाए, ऑफिस पे बुलाए, या तो फिर अगर आपको जैसा हमने यहाँ पे करके दिखाया, अगर वो सब एक्टिविटीज़ आपको देख करनी है, जैसे मैं 80 के 90 के स्पीड में गाड़ी भगाता हूँ, हैंड ब्रेक खींच के दिखाता हूँ, जो चीज़ आप यहाँ पे मैं अंधेरी जुहू में हमारा जो शोरूम है वहाँ पे प्रॉपर्ली आपको दिखा सकता हूँ। डिवाइडर के ऊपर चढ़ा के दिखाता हूँ, जिसमें मैं सस्पेंशन बताता हूँ, जिसकी क्या, जैसे हमारे यहाँ पे हाईवे एयरपोर्ट रोड है, हमारा जो बर्फ़ी वाला ब्रिज जो नया खुला है, तो वहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हैं 120 130 के स्पीड पे चला सकते हो एयरपोर्ट रोड पे। तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको यहाँ आना होगा। या तो मैं इतना कंफर्टेबल हूँ, आप मुझे फ़ोन करें, मेरा नंबर ये डिस्क्रिप्शन पे है, और प्लस यहाँ पे फ्लैश भी हो रहा है, तो आप मुझे कॉल करें। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है हमें। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू नाउ। सो ये जो जीप मेरिडियन आप यहाँ पर देख रहे हो वो 2024 में लॉन्च हुई एक अपडेटेड वेरिएंट है जो करंटली मार्केट में अवेलेबल है। सो दिस इज द ऑल न्यू 2024 जीप मेरिडियन। अब अवेलेबल है 4 वेरिएंट्स में, लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड प्लस, लिमिटेड ओ और ओवरलैंड। और अब इन्हीं के अंदर और भी सब वेरिएंट्स है, जैसे मैनुअल या ऑटोमेटिक को चूज करने का ऑप्शन, ऑप्शनल या नॉन ऑप्शनल को चूज करने का ऑप्शन। तो अब चलते हैं इसमें ऑफर किए गए कलर ऑप्शंस की तरफ। अवेलेबल है सिंगल टोन और ड्यूल टोन दोनों कलर ऑप्शंस में। तो बेस वेरिएंट जैसे लॉन्जिट्यूड वाले वेरिएंट में आपको सिर्फ सिंगल टोन कलर्स और सिर्फ इसी वेरिएंट में 8 कलर्स के ऑप्शन देखने मिलेंगे। तो जैसे वेलवेट रेड, टेक्नो मेटालिक ग्रीन, मैग्नेसियो ग्रे, पर्ल वाइट, ब्रिलियंट ब्लैक, गैलेक्सी ब्लू, सिल्वरी मून और मिनिमल ग्रे। और वेरिएंट्स जैसे लॉन्जिट्यूड प्लस, लिमिटेड ओ और ओवरलैंड वाले वेरिएंट्स में आपको सिर्फ 7 कलर्स देखने मिलेंगे विद डॉल टोन ऑप्शंस, जैसे वेलवेट रेड विद ब्लैक, टेक्नो मेटालिक ग्रीन विद ब्लैक, मैग्नेसियो ग्रे विद ब्लैक, पर्ल वाइट विद ब्लैक, ब्रिलियंट ब्लैक, गैलेक्सी ब्लू विद ब्लैक and silvery moon with black. So the one which you're looking here is actually a limited plus variant, which is basically an old non ADAS variant, and so it is in its dual tone velvet red and gray color. So let's start with the front profile. बम्पर के लोअर एंड पर मिलती है ये क्रोम लिप डिजाइन स्कर्टिंग, उसी के ऊपर है ये लोअर वेंटिलेशन रेडिएटर ग्रिल, और उसी लोअर ग्रिल में पोजिशन्ड है इसके 2 फ्रंट सेंसर्स। ऊपर यहाँ प्लेस किया गया है इसका LED फॉग रिफ्लेक्टर लैम्प कंसील्ड विद इन नाइस क्रोम स्ट्रिप। कमिंग टू इट्स हेडलाइट्स, which are Jeep Performance LED headlights, which comes with LED indicators and LED performance projectors with integrated DRLs, मतलब डे टाइम रनिंग लाइट्स। यहाँ सेंटर में है इसकी ये आइकॉनिक Jeep 7 slot grill with chrome inserts and gloss black in the center, जिसके ठीक सेंटर में है ये कैमरा जो कुछ ऐसा व्यू देता है फ्रंट का ऑन एंगेजिंग द गियर और ऑल्सो बाय टैपिंग द फ्रंट कैमरा बटन। 2 टाइप के व्यूज मिलते हैं, फ्रंट क्रॉस पाथ व्यू विच इज बेसिकली अ 180 डिग्री व्यू, और दूसरा है नॉर्मल फ्रंट व्यू विच इज ए 90 डिग्री व्यू
जिसके साथ बताया गया है टॉप व्यू विच इज बेसिकली ए 360 डिग्री व्यू। प्लेन सा बोनेट है विद जीप लोगो प्लेस्ड राइट इन द सेंटर, और वॉशर स्प्रेस भी बोनेट पर ही पोजिशनड है। कमिंग टू इट्स वाइपर्स, जो कि एरो डिजाइन ट्विन ब्लेड रेन सेंसिंग वाइपर्स है विथ वाइड वॉशर स्प्रेस, जिनका स्प्रे बहुत ही बढ़िया है, क्लीनिंग ऑलमोस्ट 95% ऑफ द विंडस्क्रीन। यहाँ विंडस्क्रीन के लेफ्ट लोअर एच पर मिलता है आपको इसका चेसी नंबर, और यहाँ विंडस्क्रीन के टॉप पर प्लेस किया गया है इसका रेन सेंसर, जो कि पानी के गिरते ही ऑटोमेटिक वाइपर्स को एक्टिवेट करेगा अगर अंदर से वाइपर्स ऑन हो तो। So moving towards the side profile of the SUV, and this is how it looks from the side. Nice and huge side glass areas जो कि बहुत ही अच्छी visibility देता है while driving, with chrome running strip over the windows. साइड ORVMs यानी आउटसाइड रेयर व्यू मिरर, जो कि SUV के सेकंड शेड ग्रे कलर में है, जो इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है विद ऑटो पावर फोल्डिंग, विद इंटीग्रेटेड LED टर्न इंडिकेटर्स, and also the camera placed in the bottom of the ORVM. Side door handles which are body colored, also with the request sensor button on it. Fuel opening lid जहां आप इसका DEF, AdBlue liquid और डीजल भर सकते हो, और ये कैपलेस फ्यूल फिलर है। मेरिडियन की बैजिंग एम्बॉस्ड ऑन द बॉटम ऑफ द ड्राइवर साइड डोर। सो ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है जिसका हम शूट कर रहे हैं, वो मेरिडियन एक्स नाम का वेरिएंट है, जो बेसिकली मेरिडियन का एक्सेसराइज्ड वेरिएंट है, और इसीलिए बाहर के साइड पर इसमें देखने मिलेगा आपको ये फुटबोर्ड, और इसमें आते हैं ये 235x55 R18 इंच 100V न्यू ड्यूल टोन मल्टी स्पोक मशीन्ड एलॉयज। सो 100 यानी आपके टायर का मैक्सिमम लोड इंडेक्स रेटिंग, और V यानी आपके टायर का मैक्सिमम स्पीड हैंडल करने का रेटिंग। तो 100 यानी इसका पर टायर मैक्सिमम लोड कैरी कर सकता है 1764 LBS यानी 800 किलो का, और V यानी ये टायर्स 149 MPH या 240 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड हैंडल कर सकते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स द रेयर प्रोफाइल ऑफ द SUV नाउ, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द रेयर, एंड दिस इज फ्रॉम वेयर इट लुक्स डिफरेंट अगेन एंड न्यू। सो टॉप पर यहाँ है स्पॉइलर विथ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, रेयर वाइपर विथ washer, which obviously I can't spray inside the showroom, and also with the rear defoggers. Nice sleek rear light panel with integrated turn indicators and stopping lamp. रेयर व्यू कैमरा प्लेस्ड राइट इन द सेंटर, जो कि रिवर्स गियर को एंगेज करने पर कुछ ऐसे व्यू देता है। 90 डिग्री व्यू विद टॉप व्यू एंड अ टोटल 180 डिग्री व्यू, एंड थर्ड इज द ओनली 90 डिग्री व्यू। 4x4 बैजिंग ऑन द लेफ्ट एंड वेरिएंट बैजिंग लिमिटेड प्लस ऑन द राइट। यहाँ नीचे लोअर एंड पर पोजिशन है इसका रिवर्स लाइट विद रिफ्लेक्टर्स एंड ऑल्सो विद द एंड रनिंग क्रोम स्ट्रिप, और पीछे यहाँ दिए गए हैं 2 नहीं 3 नहीं बट 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, और लोअर एंड के बॉटम पर मिलती है ये स्किड प्लेट। सो नाउ कमिंग टू द रूफ विच इज इन एटमॉस्फेरिक ग्रे कलर। रूफ पर मिलती है ये इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स, नाइस ह्यूज पैनोरामिक ग्लास रूफ विच दे कॉल द पेन रूफ विथ विंड डिफ्लेक्टर, और यहाँ पीछे इसका शार्क फिन एंटेना। नाउ लेट्स गेट इनटू द इंटीरियर नाउ, बट बिफोर गेटिंग इनटू द इंटीरियर, this is how the key looks. The unlock button, the lock button and the trunk opening button on pressing twice. और ये है इसका emergency key in case of any emergency or when the key battery drains. Now let's access the interior and start with the door panel. इसमें आता है ये keyless entry feature with start stop button. डोर से शुरू करते हैं तो ऐसे दिखता है मेरिडियन का डोर पैनल अंदर से, और मेरिडियन में देखने मिलता है ये ड्यूल टोन कलर कॉम्बिनेशन। डोर पैनल कवर्ड है ब्लैक प्लास्टिक्स, ब्लैक ग्लॉस प्लास्टिक्स, और बीच में है ये सॉफ्ट एम्पेरेडर ब्राउन लेदर ट्रीटमेंट पैनल। यह टॉप पर प्लेस किया गया है इसका ये डोर ओपनिंग लीवर विद 2 मेमोरी सीट बटन्स। सेंटर में है इसके ORVM के कंट्रोल्स और विंडो के स्विचेस विद ब्राउन लेदर इंसर्ट्स विद सॉफ्ट टच हैंड रेस्ट फॉर ड्राइवर्स with nice brown stitching on the door trim, door pockets to keep bottles and car cloths, और यहाँ नीचे इसके अल्पाइन के स्पीकर प्लेसमेंट with Alpine branding on it, और यहाँ डोर के एंट्रेंस पर जीप की स्कफ प्लेट। So let's move towards its interior now, its dashboard. So this is how the 2024 new Jeep Meridian dashboard looks like. A nicely laid dual tone black and emperor brown interiors wrapped in all leather upholstery with light brown stitching, with this 10.1 inch of touchscreen infotainment display elevating and complementing
the cabin space and giving it a distinctive premium look, making the ambience and every adventure feel luxurious and special. So अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा कि कंपास और मेरिडियन के इंटीरियर्स में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कंपास के टॉप एंड में ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं और मेरिडियन में ब्लैक एंड ब्राउन ड्यूल टोन लेदर इंटीरियर और सीट्स पर क्विल्टेड स्टिचिंग है। बाकी इनफैक्ट सब कुछ सेम है। Driver side sun pad with vanity mirrors and lights, and also with the expanding option. Passenger side sun pads too with vanity mirrors and lights, and with the expanding option. This is the ceiling control panel, cabin lights on both sides, dedicated yellow lights for passenger and dedicated yellow light for driver as well. Trunk opening button positioned here. The control switches for cabin lights on opening of the door, and this is the sunroof sunshade switch, और उसी के बाजू में है ये सनरूफ ग्लास पैनल को ओपन करने का स्विच। इसमें मिलता है ये ऑटो डिमिंग IRVM विथ पावर बटन टू एक्टिवेट ऑटो डिमिंग। नाइस एंड स्लीक AC डिजाइन with this chrome line running in the center. Nice brown stitching in the center of the dashboard जो कि डैशबोर्ड को एक प्रीमियमनेस देता है। सेंटर में है ये सैटिन क्रोम ट्रीटमेंट जिसके ऊपर के साइड कुछ डिजाइन प्रिंटेड है। यहाँ नीचे इसका ग्लो बॉक्स विच आई थिंक इज स्मॉलर। अब चलते हैं इसमें ऑफर किए गए इस 10.1 इंच Uconnect टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ, which is a nice, big and floating screen that seamlessly connects your phone to your Jeep's Meridian. And not only that, but this 10.1 inch Uconnect infotainment system is paired with Japanese audio brand Alpine, which is a 9 high performance speaker system, but no amplifier and subwoofer. And here's how they are positioned. Two front tweeters positioned on the dashboard, one front mid-center channel vocal speaker right in the center of the dashboard, two front speakers positioned on the front door, two rear tweeters positioned on the upper side of the doors, two rear speakers positioned on the lower side of the doors. And the reason for no subwoofer positioned in the boot is because of the third row seats designing and positioning issues. Coming to the infotainment screen now. तो ये है इसका होम स्क्रीन मेनू विद एडेड शॉर्टकट पेजेस। यहाँ नीचे इसका मेनू बार लाइक म्यूजिक फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस द FM, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेक्स्ट इज द कंफर्ट विच इज द क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन। सीट वेंटिलेशन भी यहीं से कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द जीप्स नेविगेशन स्क्रीन। Next is the connectivity screen, which will display Apple CarPlay, Android Auto if enabled, and this is how it looks like. Next is the vehicle control and setting, where you can access the surround camera and rear view camera, and this is a setting from where you can access the entire infotainment screen settings. And next is the apps menu, from where you can access all these apps. And now back to the Jeep's Uconnect interface. So आपने देखा कि infotainment screen और उसका interface is as same as Compass. थोड़ा सा भी फर्क नहीं है इसमें। The size, the connectivity, the interface, everything. स्क्रीन के नीचे यहाँ आइडल स्टॉप एंड गो का बटन, ESP का बटन यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम को ऑन ऑफ करने का बटन, हजार्ड लाइट का स्विच, पार्किंग बीप को ऑन ऑफ करने का बटन और एयरबैग एक्टिवेट की इंडिकेशन, और उसी के नीचे इसके AC वेंट्स। अब नीचे यहाँ इसमें दिए गए हैं इसके ये ऑटोमेटिक ड्यूल जोन AC के फिजिकल बटन्स और साइड में फिजिकल डायल्स फॉर वॉल्यूम, पावर एंड फॉर ट्यूनिंग द FM। उसी के नीचे इसके मीडिया हब का एक USB-C पोर्ट और एक USB-A पोर्ट विद वायरलेस फ़ोन चार्जिंग कंपार्टमेंट। यहाँ गियर लीवर के पास पोजिशन्ड है इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक स्विच। ये है इसका जीप 4x4 सिस्टम का टेरेन सिलेक्टर, जिसमें आपको सैंड, मड, स्नो और ऑटो जैसे टेरेन आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑटो मोड जो है वो बेसिकली ऑटोमेटिकली गाड़ी के ड्राइव कैपेबिलिटी को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रोड कंडीशंस। ये है इसका फुली लेदर रैप्ड 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर सिलेक्टर।
गियर के एरिया में ठीक नीचे यहाँ होल्ड का बटन, 4 व्हील ड्राइव लो का बटन, हिल डिसेंट और 4 व्हील ड्राइव लॉक के बटन। यहाँ सेंटर कंसोल पर दिए गए हैं 2 कप होल्डर्स और बीच में यहाँ इसके की को इस तरह रखने का स्लॉट, एंड ऑल्सो विद एडिशनल हॉरिजॉन्टल फोन पॉकेट जो कंपास में नहीं मिलता। कंपास में सिर्फ 2 कप होल्डर्स और एक की को रखने का स्लॉट मिलता है। और ये है इसका फुली लेदर रैप्ड आर्मरेस्ट विद स्लाइडिंग फंक्शन, और इसके अंदर मिलता है ये डिसेंट स्टोरेज स्पेस। Now moving towards its steering, which is a fully leather wrapped steering wheel. The feel of the steering is absolute premium and somewhat you get in Compass. Comes with this tilt and telescopic function. तो स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड पर है इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को ऑपरेट करने के बटन्स और कॉल, एक्सेप्ट और डिक्लाइन के बटन्स। स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड पर है इसके क्रूज कंट्रोल और स्पीड को सेट करने के बटन्स। तो स्टीयरिंग के पीछे लेफ्ट हैंड साइड पर है इसके सॉन्ग ट्रैक्स को चेंज करने के बटन्स। सेंटर में है इसके मीडिया सोर्स को चेंज करने का बटन, जैसे FM, AM एंड कनेक्टिविटी। ऊपर की तरफ प्रेस करने पर फॉरवर्ड और नीचे की तरफ प्रेस करने पर बैकवर्ड। और पीछे राइट हैंड साइड पर है इसके वॉल्यूम को एडजस्ट करने के बटन्स। और सेंटर में है इसके ऑडियो को म्यूट या अनम्यूट करने का बटन। लेफ्ट हैंड साइड पर प्लेस्ड है इसका हेडलाइट स्विच का लीवर और राइट हैंड साइड पर प्लेस्ड है वाइपर कंट्रोल का लीवर। स्टीयरिंग के पीछे लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ प्लेस्ड है इसके इंजन स्टार्ट या स्टॉप करने का बटन। अब चलते हैं इसके स्पीड क्लस्टर की तरफ, जो कि है एक 10.2 इंच का कस्टमाइजेबल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड दिस मेनू वे यू कैन सी ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस लाइक ट्रिप इंफॉर्मेशन, average information, option to also view the engine oil heat, tire pressure monitor, and the battery wattage. You can also see the terrain selector modes animation here, जैसे sand या mud का animation, traction control को on off करने का animation, auto mode का animation with the instructions below और snow mode का animation with the instruction. And also about the media. स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड पर दिखेगा आपको इसके हेडलाइट को ऑन, ऑफ या ऑटो पर रखने का डायल, और बीच में है फ्रंट फॉग और रेयर फॉग के बटन्स, और बाजू में है ये क्लस्टर ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के स्क्रोलर, और बाजू में हेडलाइट का लेवलर। यहाँ नीचे इसके रबर पैडेड ब्रेक और एक्सेलरेटर पेडल्स विद अ नाइस कंफर्टेबल फुटरेस्ट। अब बात करते हैं इसके फ्रंट सीट्स की, जो कि कवर्ड है एम्पेरेडर ब्राउन कलर में, जो कि फुल्ली लेदर रैप्ड सीट्स है विथ नाइस लाइट ब्राउन स्टिचिंग इन क्विल्टेड स्टाइल, गिविंग देम द प्रीमियम लुक। और ये जो इस पर परफोरेशन डॉट्स देख रहे हो, वो है इसके सीट वेंटिलेशन के डॉट्स टू प्रोवाइड यू कंफर्ट एंड कीपिंग यू कूल एंड एट ईज फॉर द लॉन्गेस्ट जर्नीज। ड्राइवर सीट और को पैसेंजर साइड सीट 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, और सिर्फ ड्राइवर साइड सीट जो है वो 2 मेमोरी सीटिंग पोजीशन के साथ आती है। यह साइड में पोजीशन है इसके सीट्स को रिक्लाइन या एडजस्ट करने के स्विचेस, और ये है इसका लंबार सपोर्ट कंट्रोल के बटन्स। सो अब चलते हैं इसके रेयर सीट्स या सेकंड रो की तरफ। अब रेयर सीट्स के बारे में बात करूँ तो ये सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है। 60-40 स्प्लिट सेकंड रो सीट्स है ये, also with the fold and tumble in one go to access the third row. Rear sitting experience बहुत ही comforting है. You also get 3 headrests for rear passengers, which means 3 passengers can sit on the rear seats. You can see how nice and spacious the legroom is. Headroom decent है, but if you open the sunroof shade, you get the nice expanded headroom. Taller passengers like 6 foot might face minor issues. ये है इसका रेयर सेंटर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स एंड वर्टिकल फोन होल्डर पॉकेट बिटवीन द कप होल्डर्स। उसी के साथ यहाँ रेयर AC के वेंट्स, उसी के नीचे यहाँ एक USB-A का पोर्ट, और यहाँ नीचे कंसोल के बॉटम में यहाँ एक 12V DC का पोर्ट, जिसमें फिलहाल फुट लाइट्स का प्लग लगा हुआ है। यहाँ सीलिंग पर प्लेस्ड है इसके सॉफ्ट क्लोज ग्रैब हैंडल्स विथ रूफ माउंटेड कैबिन रीडिंग लाइट्स इन देम, जो कि येलो कलर लाइट्स है। And on the roof, you get this massive panoramic sunroof.
सो अब चलते हैं इसके थर्ड रो की तरफ। सो नाउ टू एक्सेस द थर्ड रो, सेकेंड रो सीट्स को फोल्ड करना पड़ता है, जो बेसिकली वन टच फोल्ड एंड टंबल सीट्स है इसके। एंड दिस इज हाउ इट्स डन। और ऐसे कुछ दिखती है मेरिडियन की थर्ड रो सीट्स। सो थर्ड रो की सिटिंग पोजीशन तो आप देख ही सकते हो कितनी अनकंफर्टेबल है। द थर्ड रो सिटिंग is so low that your thighs has absolutely no support, no knee room, no headroom, nothing. So these third row seats are clearly just meant for kids up to 10 years. थर्ड रो की लेफ्ट हैंड साइड पर मिलती है आपको ये फोन होल्डर और एक बॉटल होल्डर, एज वेल एज द प्रॉपर आर्मरेस्ट स्लॉट। और थर्ड रो के लिए यहाँ सीलिंग पर पोजीशन है दो एसी के वेंट्स, और इन्हीं के बीच में है ये एसी के कंट्रोल स्विच। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स बूट स्पेस। सो इसकी भी जो बूट है वो तीन तरीके से एक्सेस की जा सकती है। पहला है इसके की पर दी गई ये बूट ओपनिंग बटन ऑन डबल टैपिंग इट। दूसरा है इसके सीलिंग के फ्रंट कंसोल पर दिया गया ये बूट ओपनिंग बटन। और तीसरा है इसके बूट लीड पर दिया गया ये स्टैंडर्ड बूट ओपनिंग बटन। और ये है इसका बूट स्पेस। तो इसमें मिलती है 170 लीटर की बूट स्पेस अगर थर्ड रो सीट्स खुली है तो। और अगर थर्ड रो सीट्स को फोल्ड कर दिया जाए तो एक्सेस की जा सकती है 481 लीटर्स तक की बूट स्पेस। और अगर सेकेंड रो सीट्स को फोल्ड कर दिया जाए तो फिर इसमें इजीली दो लोग सो सकते हैं। या बूट लगेज ट्रे के नीचे प्लेस्ड है इसका टायर टूल किट। और बाहर या एसयूवी के नीचे पोजिशन्ड है इसका फुल साइज स्टील ड्रम स्टेपनी व्हील। बूट के एंट्रेंस के लेफ्ट पर ही प्लेस्ड है इसका बूट क्लोजिंग बटन। टैप करते ही बूट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी एंड ऑल्सो विद द एंटी पिंच फंक्शन। सो लेट्स गेट ड्राइविंग नाउ। बट बिफोर ड्राइविंग लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू समथिंग। जीप में एक ऐसा सेफ्टी फीचर है जो जीप की सारी गाड़ियों में और सारी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है। और वो ये है कि अगर आपने सीट बेल्ट पहनी ना हो और गाड़ी को ड्राइव मोड पर डालते हो और फिर जैसे ही आप एक्सलरेट करते हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक डिसएंगेज नहीं होगा और गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन फिर जैसे ही आप इसके सीट बेल्ट पहनते हो और फिर एक्सलरेट पर टैप करते हो, इसका हैंड ब्रेक डिसएंगेज हो जाता है एंड यू आर ऑल सेट टू ड्राइव। So let's put the seat belt first. Let's start the SUV with its start stop button. Let's turn on the AC. Now into the drive mode. Electronic handbrakes disengaged. And here we go. So for the safety reasons, we can't do the 0 to 100 km speed test, as these are the dealership test drive vehicles, and also we don't have the space to do it on their dedicated drive route. So coming to the engine now, Jeep Meridian is available with only one engine option, जो है 2 liter Multijet 2 turbo diesel engine, which is the standard engine across all the variants of the Meridian. In fact, you get to see the same engine in the Compass too, which gives 170 bhp of power at 3750 rpm, generating 350 newton meters of torque at 1750 to 2500 rpm, which is mated to a 9-speed automatic transmission. तो engine wise Meridian और Compass तो almost same ही है, but when it comes to the handling, it's more enhanced than what Compass is, as it gets a monocoque shell chassis, which gives it a tauter feel and minimal to no body roll. Also, it's very good at corners or sharper turns. Mr. Abhishek Pawar has demonstrated us its cornering and its stable capabilities when in higher speeds around a circle, and how stunningly it keeps glued to the road throughout this circling task. And watch how Mr. Abhishek Pawar demonstrates it stunningly. So now coming to the fuel tank and mileage. So it comes with a capacity of 60 liter of diesel fuel tank, which in city it gives around 11 to 12 kilometer per liter, and on highway it gives around 15 to 16 kilometers per liter. It might give you more mileage if you drive it in a very proper manner.
Coming to its suspension, front में you get McPherson strut with FSD यानी frequency selective damping, also with HRS यानी hydraulic rebound stop with anti roll bar disc. Rear में you get multi-link with strut suspension with FSD यानी frequency selective damping. तो इसमें ऑफर किया गया है FSD विद HRS ऑल्सो विद दी एंटी रोल बार डिस्क. तो HRS यानी हाइड्रोलिक रिबाउंड स्टॉप. तो HRS ये एक स्टैंडर्ड शॉक एब्जॉर्बर्स के लिए एड ऑन फंक्शन है. ये पॉट होल्स और गड्ढों के कारण गाड़ी को लगने वाले हाई रिबाउंड फोर्सेस और झटकों को अपने तरीके से कंट्रोल करके उसको कम कर देता है, जिसके फायदे इम्पैक्ट पर होने वाले आवाज को कम कर देना और इम्पैक्ट से बॉडी और माउंट असेंबली को होने वाले झटके को कम कर देना होता है. Now to the brakes, which obviously you get disc brakes on all the four wheels with the same RBS यानी रेन ब्रेक सपोर्ट टेक्नोलॉजी जो मैंने कंपास में एक्सप्लेन किया हुआ है. Also it's so good with braking on higher speeds on just tapping the electronic brakes, as you can see how I did it in this shot and how quickly it came to a stop. So now coming to its safety. In safety, it has a long list equipped with over 60 best-in-class safety and security features, which are almost same compared to Compass and also which cannot be covered in this list. Standard safety features like airbags, ABS, EBD, disc brakes, etc. etc. Following are unique advanced safety features which are standard across all the variants of your Jeep Meridian, and let me tell you something different. Laser welded roof and doors, dual stage passenger airbag, total 6 airbags in the front, 2 side curtains at the rear, 4 channel ABS यानी anti-lock braking system, DST यानी dynamic steering torque, TCS यानी all speed traction control system, EPB यानी electronic parking brake, EBP यानी electronic brake prefill, HBFC यानी hydraulic boost failure compensation, RBS यानी रेन ब्रेक सपोर्ट, ERM यानी इलेक्ट्रॉनिक रोल ओवर मिटिगेशन, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, ड्यूल नोट इलेक्ट्रिक हॉर्न्स, सीट बेल्ट विद लैप रिटेंशनर्स, सेकंड रो सेंटर पैसेंजर 3-point सीट बेल्ट, सेकंड रो सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, डबल क्रैंक प्रिवेंशन सिस्टम, ऑक्यूपेंट डिटेक्शन सिस्टम, auto hold for automatic, 360-degree camera, 28 acoustic baffle zones, 70+% highest in the segment, galvanized high tensile strength, steel used in monocoque body structure, 5-star Euro NCAP and Australia NCAP safety rating. So now coming to the dimensions, but इस बार हम कंपास और मेरिडियन दोनों के डायमेंशंस कंपेयर करेंगे. तो लेंथ में कंपास है 4405 मिलीमीटर्स, मेरिडियन है 4769 मिलीमीटर्स, विड्थ में कंपास है 1818 मिलीमीटर्स, मेरिडियन है 1859 मिलीमीटर्स, कंपास की हाइट है 1640 मिलीमीटर्स, वेरेज मेरिडियन की हाइट है 1698 मिलीमीटर्स, कंपास का व्हील बेस है 2636 मिलीमीटर्स का, वेरेज मेरिडियन का व्हील बेस है 2782 मिलीमीटर्स का, कंपास की ग्राउंड क्लियरेंस है 207 मिलीमीटर्स की, वेरेज मेरिडियन की ग्राउंड क्लियरेंस है 203 मिलीमीटर्स की, कंपास का कर्ब वेट है 1597 किलो, वेरेज मेरिडियन का कर्ब वेट है 1766 किलोस, कंपास का अप्रोच एंगल है 16.1 डिग्रीज का, वेरेज मेरिडियन का अप्रोच एंगल है 21.5 डिग्रीज का, कंपास का रैम ब्रेक ओवर एंगल है 22.5 डिग्रीज का, वेरेज मेरिडियन का रैम ब्रेक ओवर एंगल है 23.1 डिग्रीज का, कंपास का डिपार्चर एंगल है 31.4 डिग्रीज का, वेरेज मेरिडियन का डिपार्चर एंगल है 23.6 डिग्रीज का. सो आप कंपेयर कर ही सकते हो. सो नाउ टू द कंक्लूजन. तो द 2024 Jeep Meridian is a perfect 3-row family SUV. बट जिनके घर बच्चे हैं जो थर्ड रो में बैठ सके. Otherwise, the Meridian is a perfect family Jeep. Or let's say the extended Compass or the Compass XL or even slightly more better than the Compass in terms of space, refinement and the practicality it holds. But price point again. For where it's priced, it could have been more luxurious, more powerful, and more spacious. And if I had to choose between the Compass or the Meridian, I would go for the top end 4x4 Compass anytime. Just cause the extended part of the third row doesn't make any sense for me. And
It also sacrifices the Alpine subwoofer in the boot, and also which is why you won't enjoy the music system as much as you do in the Compass. Rest everything remains the same. Market में इसके competitors है Hyundai की Tucson, Toyota की Fortuner, MG की Gloucester, Skoda की Kodiaq, Volkswagen की Tiguan और Citroën की C5 Aircross. So now about the pricing. इसकी बेस वेरिएंट जो कि लिमिटेड है उसकी ऑन रोड प्राइसिंग शुरू होती है 38.11 लाख से लेकर टॉप एंड वेरिएंट लिमिटेड प्लस की ऑन रोड प्राइसिंग है 47.63 लाख और इसकी जो ओवरलैंड वेरिएंट है उसकी ऑन रोड प्राइसिंग है 48.66 लाख. सो ये तो हो गए इसके ऑन पेपर प्राइसिंग, बट लैंडमार्क जीप अंधेरी हैज समथिंग टू ऑफर यू. So now let Abhishek Pawar explain you the current ongoing prices in their showroom. Also, he'll explain you the service and maintenance cost and the warranty. So अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मेरिडियन के बारे में, मेरिडियन की प्राइसिंग के बारे में. डीजल मैनुअल जो एक ही वेरिएंट, इसमें आपको बता देता हूँ सिर्फ दो ही वेरिएंट है, एक है लिमिटेड और दूसरा है ओवरलैंड. और आपको एक खुशखबरी बताऊँगा, फ्यूचर में मतलब अगले महीने में हमारी मतलब मोस्टली ये महीने के एंडिंग में हमारी एडास मेरिडियन लॉन्च हो रही है. जो आप पहले के जो मेरे वेरिएंट्स है जो विदाउट एडास वाले थे, विदाउट एडास वाला वेरिएंट था, वो आपको हम अच्छे डिस्काउंट में दे रहे हैं, सेम जैसे हमने कंपस में दिया है. 2 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस डिस्काउंट, 90,000 रुपये तक आपको इंश्योरेंस में डिस्काउंट मिलेगा. और एक जैसा मैंने आपको बताया, अगर गाड़ी स्टॉक में है तो एक 10-20 हज़ार रुपये और दे के आपको क्लोज करेंगे. दूसरा जैसा मैंने आपको बताया, कॉर्पोरेट डिस्काउंट और लीजिंग डिस्काउंट भी हमारे ब्रांड में है, जीप में, कंपस में और मेरिडियन में. तो वो बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा. जो भी लीजिंग कस्टमर्स है, डॉक्टर्स है, उनके लिए भी हमारे पास ऑफर है. तो आप जब भी हमारे शोरूम पे विजिट करेंगे आपको ज़रूर बताएंगे. तो सबसे पहले हम लेंगे डीजल मैनुअल लिमिटेड वेरिएंट. सिंगल वेरिएंट है, उसका एक शोरूम प्राइस है 23,000 रुपीज़ ऑन रोड, एक शोरूम प्राइस. और ये ऑन रोड आती है कुछ 98,98,000 रुपीज़ में आपको ऑन रोड आएगी डीजल मैनुअल. जो हमारा सबसे ज़्यादा रनिंग मॉडल है वो लिमिटेड ऑप्शन 980 है, जो ऑटोमेटिक वेरिएंट आता है फर्स्ट 4x2. उसका एक शोरूम प्राइस है 35,69,000, वो आती है आपको ऑन रोड प्राइस 44,38,000. फिर से बताऊंगा, उसमें 2 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस डिस्काउंट आएगा और इंश्योरेंस में 90,000 रुपये डिस्काउंट. और अगर स्टॉक में गाड़ी अवेलेबल है तो 10 से 15, 20 से मैक्सिमम 20,000 रुपये देके डिस्काउंट हम ये चीज़ क्लोज कर सकते हैं. तो प्लीज़ बिल्कुल भी वेट नहीं करिएगा, तो ये गाड़ियाँ जल्दी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हमारा नया स्टॉक आने वाला है एडास के साथ में. तो ओवरलैंड की एक शोरूम प्राइस 4x2 की प्राइस आपको बताऊंगा 37,14,000 में ये एक शोरूम प्राइस आती है. ऑन रोड प्राइस आपको 46,13,000 में ऑन रोड आएगी. आप समझ जाइए, इसके बाद जब एडास लेवल आएगा तो सिर्फ एडास और कुछ इंटीरियर चेंज होगी तो उसके ऊपर समझ लो आप लाख रुपये ऊपर, लाख से 1.5 लाख रुपये ऊपर ये गाड़ी आ सकती है जो नई एडास के साथ में आ रही है. एडास लेवल 2 है, जिसमें आपको जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जितने भी एडवांस एडास आए तो सेम वही लेवल का एडास होने वाला है. तो मैं आपको अभी मेंटेनेंस पैकेज के बारे में बताऊंगा. जो मेंटेनेंस पैकेज आपका रहेगा मेरिडियन के लिए 55,500 रुपीज़ में आपको मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा. तो आप डिवाइड करिए 55,500 3 साल में, तो ये हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट है गाइस. फिर से बता रहा हूँ, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी फैमिली गाड़ी में सेफ है. कंपनी 3 साल का वारंटी देती है, प्लस ये 2 साल का है. 3 साल का कंपनी दे रही है, 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी का कॉस्ट है 52,000. फॉर 3 साल में आपका 1 लाख किलोमीटर कवर होता है, 2 साल में आपका 50,000 किलोमीटर कवर होता है. तो यहाँ पे आपको 52,000 में आपको टोटल पूरा 5 साल का आपको मिल जाता है. तो ज़रूर आइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, आपको पता चलेगा जीप क्या है. सो हमारी जो सर्विस का टाइम पीरियड है, एवरी 15,000 किलोमीटर 1 ईयर 1 सर्विस, और 5,000 किलोमीटर पे आपकी गाड़ी चेकअप होगी. तो फिर बता रहा हूँ 5,000 पे चेकअप, एवरी 15,000 किलोमीटर 1 ईयर 1 सर्विस. मेंटेनेंस पैकेज और एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर लेना, क्योंकि अगर आप ये दोनों लेंगे तो आपको लाइफ में 5 साल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. नहीं तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आएगा, आपको सर्विस कॉस्ट ज़्यादा आएगा. तो उसके अच्छा है कि आप ये मेंटेनेंस पैकेज और एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर लें. So that's all about this 2024 Jeep Meridian. Thanks for watching AVG Automotive. Subscribe and tap the bell icon for more upcoming reviews. Thank you.